Hello everyone, welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik and in today's video we are going to talk about attitude change via persuasion. So before starting with this video, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ that I hope आप सब ने attitude change पे जो part 1 वाला video है that is attitude change by cognitive dissonance. I hope आप सब ने वो already देख लिया है before starting with this video that is part 2 of attitude change, and also I hope that all of you have seen previous videos on attitude chapter that is attitude formation and link between attitude and behavior. If you haven't seen these videos yet, so please आप जाओ and देखो. You will find the links in the description box below. So शुरू करते हैं attitude change by persuasion. So in this particular video हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो attitude already form हो चुका है, how can that attitude be changed via the persuasion method. A persuasion method, as discussed in the previous video, persuasion method is when somebody else is trying to change our attitude for a specific person, event or issue. तो यहाँ पे हम यही देखेंगे कि कोई external message की वजह से हमारा attitude कैसे change होता है. So let us get started with today's video. So first of all what we are going to talk about is जो ड्यूअल प्रोसेस मॉडल है परसुएशन का. सो इन परसुएशन वी हैव अ ड्यूअल प्रोसेस मॉडल ऑफ परसुएशन. ड्यूअल प्रोसेस मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है दो टाइप्स की प्रोसेसिंग होती है. सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, एक येलो बॉक्स है और एक ब्राउन बॉक्स है. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग दैट वी हैव. द फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग एंड द सेकेंड वन इज ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग. ठीक है. नाउ सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग जो है वी ऑल्सो कॉल इट एज द नाइव साइंटिस्ट अप्रोच. नाइव साइंटिस्ट अप्रोच क्या होता है? एक ऐसी अप्रोच जो कि सारा इंफॉर्मेशन लेता है पहले और आफ्टर दैट ओनली बिलीव्स इन समथिंग. सो नाइव साइंटिस्ट अप्रोच इज बेसिकली टेकिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड द सेकेंड टाइप ऑफ अप्रोच जो कि है ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग, उसको हम कॉग्निटिव माइजर अप्रोच भी बोलते हैं. सो कॉग्निटिव माइजर अप्रोच जो है वो जस्ट ऑपोजिट है नाइव साइंटिस्ट के. नाइव साइंटिस्ट में हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इनटेक करते हैं, पर कॉग्निटिव माइजर अप्रोच में क्या करते हैं, वी डू नॉट टेक अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लेना चाहते, हम कम से कम मेंटल प्रोसेसेस यूज़ करना चाहते हैं, एंड देयरफॉर वी टेंड टू टेक शॉर्टकट मेथड्स. सो नाइव साइंटिस्ट या फिर सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग का जो है परसुएशन में, दैट is where we look at a lot of information, or heuristic processing or cognitive miser is one where we take shortcuts and do not look at lot of information. So now अब हम देख लेते हैं कि कुछ characteristics क्या हैं systematic processing के और heuristic के. So systematic processing जो है we take the central route of processing and in heuristic we take the peripheral route. तो periphery हम सबको पता है क्या होता है. periphery हम जो English word है periphery that means outskirts, कि कोई भी जगह है उसके outskirts, that means किनारे किनारे से निकल जाओ. So heuristic processing में यही होता है that we take the peripheral route of processing. instead of सारी information पे देखना और सारी information के बारे में समझना, we just take the किनारा वाला take and the peripheral route and we just focus on the important things. Central route क्या हो गया? that we focus on all the information that is presented to us. ठीक है. फिर systematic processing में just look at the second bullet point. What does it say? It is taken when people are motivated and able to think carefully about the content of the message. तो usually जो हमारा systematic processing approach होता है वो जब ही लिया जाता है when people are very much motivated to gather a lot of information, to think carefully about कि message का content actually क्या है. कोई अगर मुझे कुछ बता रहा है कि पता है उस event में तो ऐसे ऐसे हुआ था, so I will actually be motivated कि actually हुआ क्या था उस event में. So I will gather all the information उस event में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ. ठीक है. So then is when we take systematic processing, जब हम पूरा का पूरा content of message के बारे में carefully think कर रहे हैं. Right? Because we are thinking carefully about the whole content of the message, हम पूरी information को भी gather कर रहे हैं. Therefore systematic processing में
हाई इलैबोरेशन कंडीशन होता है. हाई इलैबोरेशन कंडीशन मतलब वी इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस, थिंकिंग हो गया, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, हम इन सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं. दैट इज़ वाई वी से हाई इलैबोरेशन कंडीशंस. एंड लास्टली, चलो इस लास्ट पॉइंट पे हम बाद में आते हैं. वी मूव ऑन टू ह्यूरिस्टिक का. ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग कब ली जाती है? हमने देखा सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग तो वी टेक व्हेन वी थिंक केयरफुली अबाउट द कंटेंट ऑफ मैसेज. बट व्हेन डू वी टेक ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग? सो जस्ट लुक एट द सेकंड बुलेट पॉइंट ऑफ द ब्राउन बॉक्स. ठीक है, heuristic processing is taken when people are unwilling to analyze the message content. ठीक है, तो बहुत सारे chances होते हैं when we all are unwilling to analyze message content. हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को समझने में या सुनने में, and we are unwilling to analyze that content. तो at that point we take the heuristic processing approach. So what do the people do? They are not analyzing message content. तो किस बेसिस पे वो अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं या फॉर्म करते हैं? So they may pay attention to cues that are irrelevant to the context or quality of communication. तो क्या करते हैं कि instead of paying attention to message content, they pay attention to कुछ ऐसे cues. Cues क्या होते हैं? Things that are present in the external environment. That are cues. ठीक है? So they pay attention to those things in the external environment which are actually irrelevant to the message content. ठीक है, वो मैसेज कंटेंट से रिलेटेड ही नहीं होते, उनका कोई रिलेशन नहीं होता. व्हाट कैन बी सच क्यूज? ऐसा हो सकता है कि अट्रैक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेटर. जो इंसान मुझे वो मैसेज कंटेंट दे रहा है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन वो मैसेज क्या है, आई फोकस ऑन द पर्सन हु इज गिविंग, हाउ अट्रैक्टिव दैट पर्सन इज. अगर वो बहुत अट्रैक्टिव है, देन आई मे क्विकली अग्री टू हर और हिज डिमांड्स एंड चेंज माई एटीट्यूड. ठीक है, सो अट्रैक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेटर इज वन क्यू. जो दूसरा क्यू हो सकता है वो हो सकता है अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ होता है ना दैट इफ समबडी इज टेलिंग अस अबाउट समथिंग और वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें दे देते हैं, वी आर नॉट रेडी टू एनालाइज दैट मैसेज कंटेंट. बट हम सोचते हैं कि इस इंसान ने काफ़ी सारा कुछ बोला है तो सही बोला होगा, इतना सारा कुछ बोला है. सो दैट इज़ व्हेन वी गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कि इतना सारा बोला है, दैट मीन्स कुछ तो सही होगा इसमें. सो लेट मी टेक cognitive miser approach. Instead of focusing on the message content, I am just focusing on the amount of information. So heuristic processing जब ली जाती है when people are unwilling to analyze the message content. Systematic processing जब ली जाती थी when people were motivated to analyze the content of the message. Right? So in heuristic processing, क्योंकि people are unwilling to analyze message content, तो जो elaboration conditions हैं they are very low. बहुत low elaboration condition हो जाती है. They do not use their mental processes much. So अभी तक I hope all of you have understood the basic differences between systematic processing and heuristic processing. और I hope that ये भी clear हो गया होगा that why systematic processing is called central route. Central route because we focus on a lot of information. Heuristic processing is called the peripheral route because we focus on the outskirts. We do not focus on the main information. We focus on the external cues which are not even related to the quality of communication. ठीक है, अब देखो लास्ट पॉइंट इन सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग, द रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड्स दैट प्रिडिक्ट्स बिहेवियर. अब क्योंकि जो सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग है उसमें हमने कंटेंट ऑफ मैसेज को काफ़ी अच्छे से एनालाइज किया है, सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से एनालाइज की है, हाई इलैबोरेशन कंडीशन थी, इसीलिए फाइनली जो मेरा एटीट्यूड बनेगा दैट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग. क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारी रिसर्च कर ली है दैट वेदर दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट और नॉट, ये इन्फॉर्मेशन सही भी है कि नहीं है और कितने एक्सटेंट तक सही है, और ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद ही मैंने अपना एटीट्यूड फॉर्म किया है. इसीलिए वी से दैट सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग से जो भी एटीट्यूड फॉर्म होता है दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड एंड देयरफॉर इट विल ऑल्सो प्रिडिक्ट आवर बिहेवियर. राइट, बट ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में क्या होता है, मैंने इन्फॉर्मेशन तो अच्छे से एनालाइज करी ही नहीं है, देयरफॉर जो आपका ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग है इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वीक एटीट्यूड्स एंड आर नॉट प्रिडिक्टिव ऑफ बिहेवियर. तो आपका ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में बिकॉज मैंने सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से एनालाइज नहीं की है, मैंने
मैसेज के कंटेंट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, इंस्टेड आई फोकस्ड ऑन सर्टेन एक्सटर्नल क्यूज। इसीलिए अल्टीमेटली जो भी मेरा एटीट्यूड बनेगा वो वीक होगा। दैट मीन्स फ्यूचर में अगर कोई और एक्सटर्नल क्यू आ जाता है तो हो सकता है मेरा एटीट्यूड फिर से चेंज हो जाए, या जो मेरा एटीट्यूड है उसके ऑपोजिट में बिहेवियर एग्जिबिट करूं। देयरफॉर ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वीक एटीट्यूड। क्योंकि एटीट्यूड वीक है, देयरफॉर एटीट्यूड के बेसिस पे हम अपने बिहेवियर को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। दिस थिंग वी हैव ऑल्सो कवर्ड इन द लिंक बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, सो मेक श्योर दैट यू हैव वॉच्ड दैट वीडियो एज वेल। ठीक है, सो दिस इज द ड्यूअल प्रोसेस मॉडल्स ऑफ परसुएशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, यू मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग एंड ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। राइट, लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ. Now there are certain factors that influence which route is taken. Route मतलब अभी हमने देखा था सेंट्रल रूट एंड पेरिफेरल रूट. सो अभी आगे आने वाली जो स्लाइड्स होंगी वी विल बी यूजिंग दीज वर्ड्स, सेंट्रल रूट और पेरिफेरल रूट. सो प्लीज मेक श्योर कि यू हैव कोरिलेटेड. सेंट्रल रूट मतलब सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग जिसमें हम सारी इंफॉर्मेशन पे फोकस कर रहे हैं. पेरिफेरल रूट मतलब ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग जिसपे वी आर नॉट फोकसिंग ऑन ऑल द इंफॉर्मेशन, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन क्यूज, एक्सटर्नल क्यूज. राइट, तो अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे कि हम जो है सेंट्रल रूट ऑफ प्रोसेसिंग लेंगे या फिर पेरिफेरल रूट ऑफ प्रोसेसिंग लेंगे. सो जस्ट लुक एट दीज फैक्टर्स. सो मैंने इसको कलरफुल बनाया है सो दैट योर अटेंशन रिमेन्स हियर. राइट, सो जो फर्स्ट फैक्टर है दैट इन्फ्लुएंसेस कि वेदर आई विल टेक द सेंट्रल रूट ऑफ प्रोसेसिंग या फिर पेरिफेरल रूट ऑफ प्रोसेसिंग, वो है स्पीड ऑफ स्पीच. ठीक है, देन द सेकेंड वन इज मूड, द थर्ड वन इज सेल्फ रेलेवेंस, फोर्थ वन आ गया आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड द फिफ्थ वन इज ह्यूमर. सो जस्ट सी दीज, स्पीड ऑफ स्पीच है, मूड है, सेल्फ रेलेवेंस है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है एंड ह्यूमर है. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये सारे जो आपके फैक्टर्स हैं इनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे क्विकली, इंडिविजुअल डिस्कशन. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले आता है आपका स्पीड ऑफ स्पीच. तो स्पीड ऑफ स्पीच में जस्ट मेंटेन फोकस ऑन द फर्स्ट बुलेट पॉइंट. राइट, रैपिड स्पीच मेक्स इट हार्ड टू प्रोसेस द कंटेंट ऑफ अ परसुएसिव मैसेज. सो पीपल अबैंडन द सेंट्रल रूट एंड टेक द पेरिफेरल रूट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. अब इसका मतलब क्या होता है कि रैपिड स्पीच होती है ना. सो डिड यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट आई से? नो, राइट. तो अभी थोड़ी देर पहले ही जो भी मैंने बोला आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, है ना, और आप लोगों ने सोचा होगा व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट. राइट, तो दिस इज व्हाट स्पीड ऑफ स्पीच इज, कि अगर मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में कोई चीज़ बोल देती हूँ दैट इज़ योर रैपिड स्पीच. ठीक है, इफ़ आई से समथिंग इन वेरी स्पीडी मैनर तो दैट मेक्स इट हार्ड टू प्रोसेस द कंटेंट ऑफ सर्टन मैसेज. तो मैंने थोड़ी देर पहले जो भी बोला होगा आई एम प्रिटी श्योर दैट मेजॉरिटी ऑफ यू, आप लोगों को नहीं समझ आया होगा कि मैंने क्या बोला. राइट, सो देयरफॉर अगर मैं बहुत तेज़ बोलूँगी कोई भी मैसेज को, स्पेशली एक ऐसा मैसेज जिसकी मदद से मुझे किसी का एटीट्यूड चेंज करना है, सो रैपिड स्पीच विल मेक इट हार्ड टू प्रोसेस दैट कंटेंट. वो जो एक्सटर्नल लोग हैं जिनका एटीट्यूड मुझे चेंज करना है वो मेरा जो मैसेज है उसको कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कि मैंने क्या बोला. नाउ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न पीपल विल अबैंडन द सेंट्रल रूट. सेंट्रल रूट क्या होता है, अब वो इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस ही नहीं करेंगे. क्यों नहीं फोकस करेंगे? बिकॉज उनको मैसेज कंटेंट कुछ समझ नहीं आया कि क्या बोला, बिकॉज आई सेड इन सच अ रैपिड मैनर. तो इसीलिए उनको कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी और वो सोचेंगे कि छोड़ो क्या इतना सोचना, लेट मी टेक द पेरिफेरल रूट. तो वो सेंट्रल रूट को दे विल अबैंडन, इंफॉर्मेशन पे दे विल नॉट फोकस और वो ले लेंगे पेरिफेरल रूट. तो पेरिफेरल रूट में क्या, अब किस चीज़ों पे वो फोकस करेंगे, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि मैसेज क्या था, मैंने क्या बोला, दे विल फोकस ऑन मे बी हाउ डू आई लुक, मे बी मैंने कितनी देर तक बोला, कितना अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दिया. ठीक है, दे विल फोकस ऑन द पेरिफेरल थिंग्स, द एक्सटर्नल क्यूज. सो स्पीड ऑफ स्पीच का जो फैक्टर है वो यही कहता है कि अगर बहुत रैपिड स्पीच होगा, बहुत तेज़ किसी ने परसुएसिव मैसेज स्पीड में बोल दिया, सो पीपल विल नॉट बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड द मैसेज. देयरफॉर वो सेंट्रल रूट तो लेंगे ही नहीं एंड दे विल गो अहेड एंड टेक द पेरिफेरल रूट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. So this becomes your first factor that influences which route will be taken. Now the second factor is mood. Now अब आप speed of speech को छोड़ो and second bullet point पे आओ, that is mood.
राइट तो मूड भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट विल एक्चुअली इन्फ्लुएंस कि आप सेंट्रल रूट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लेते हो या पेरिफेरल रूट. सो लेट मी जस्ट सी. So देखो, in general happy people take the peripheral route and unhappy people tend to take the central route of processing. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जिन हैप्पी पीपल मतलब जिन लोगों का मूड काफ़ी अच्छा है, ठीक है, दे आर वेरी हैप्पी राइट नाउ, या एक पर्टिकुलर टाइम पे दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज मे बी कुछ अच्छा हुआ उनके साथ, सो दे आर हैप्पी. ठीक है, सो जो हैप्पी पीपल हैं दे टेंड टू टेक पेरिफेरल रूट. पेरिफेरल रूट कौन सा था? जिसमें इंफॉर्मेशन पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते. एंड जो अनहैप्पी पीपल होते हैं, मे बी सैड है, मे बी कुछ उनके साथ मिस हैपनिंग हो गया या कुछ बुरा इंसिडेंट हुआ, अनहैप्पी पीपल टेंड टू टेक सेंट्रल रूट. सेंट्रल रूट था जिसपे वो हर इंफॉर्मेशन पे फोकस करेंगे एंड दे विल नॉट सिंपली से यस बिफोर दे एनालाइज एवरी बिट ऑफ द इंफॉर्मेशन. अब इसका एक एग्जाम्पल आई कैन गिव यू अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं. ठीक है, सो अक्सर क्या होता है कि वेन एवर वी वॉन्ट समथिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स, ठीक है, हमें अपने पेरेंट्स से फॉर एग्जाम्पल बर्थडे गिफ्ट के लिए हमें कोई मोबाइल चाहिए. ठीक है, वी वॉन्ट अ मोबाइल फ़ोन फॉर आवर बर्थडे गिफ्ट. सो वॉट वी डू इज़ हमें अपने पेरेंट्स तक ये मैसेज कन्वे करना है दैट यू नो आई वॉन्ट अ मोबाइल फ़ोन फॉर माई बर्थडे गिफ्ट. सो वॉट वी डू इज़ कि पेरेंट्स ऑफिस से काम करके आए, राइट, व्हेन दे कम होम उस वक्त तो हम बोलेंगे नहीं. वाई? क्योंकि उस वक्त पेरेंट्स थके हुए हैं, हो सकता है मूड थोड़ा ख़राब हो. वी विल नॉट से एट दैट टाइम. जब हम खाना खा लेंगे और हम देखेंगे कि पेरेंट्स का मूड तो काफ़ी अच्छा है, अच्छे हैप्पी मूड में लग रहे हैं अभी दोनों, सो देन आई विल गो एंड से कि मम्मा पापा आई वॉन्ट अ मोबाइल फ़ोन फॉर माई बर्थडे. एंड हाई चांसेस हैं कि क्योंकि पेरेंट्स का मूड जो है अच्छा है, दे आर हैप्पी राइट नाउ, सो इंस्टेड ऑफ asking a lot of questions कि क्यों चाहिए, अभी तो दिलाया था, या all of that thing, they will simply say ठीक है दे देंगे. they will simply say yes. क्योंकि ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने पेरिफेरल रूट ले लिया. पेरिफेरल रूट मतलब उन्होंने इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस किया नहीं कि क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, अभी तो दिया था, नहीं ये नहीं मिलेगा. सो दे डिड नॉट फोकस ऑन अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. उन्होंने सिंपली कहा ओके आई विल गिव यू द फोन, राइट. सो इन जनरल हैप्पी पीपल दे टेंड टू टेक पेरिफेरल रूट. पर जो अनहैप्पी पीपल हैं, इसी केस में अगर जैसे ही पेरेंट्स ऑफिस से वापस आए होते एंड वी सी कि वो काफ़ी मतलब ज़्यादा अच्छे मूड में नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, दे आर वेरी मच टायर्ड, और उस पॉइंट पे अगर आई वुड हैव सेड कि मुझे एक फ़ोन चाहिए बर्थडे गिफ्ट के लिए, सो लाइकली चांसेस हैं दैट दे विल आस्क मी फॉर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन कि क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, क्या करोगे, अभी तो दिलाया था, या अभी तो तुम्हारा फ़ोन है तुम्हारे पास, राइट. सो इन मूड का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है कि हम पेरिफेरल रूट लेंगे या फिर सेंट्रल रूट लेंगे. अब जो ये फैक्टर है दैट अनहैप्पी पीपल टेंड टू टेक द सेंट्रल रूट, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? दिस इज सो बिकॉज नेगेटिव मूड कैन सिग्नल दैट समथिंग इज रॉन्ग, राइट. कि अगर आप ऑलरेडी एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में हो, ऑलरेडी आपका मूड अच्छा नहीं है, सो दैट विल एक्चुअली ट्रिगर कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ लग रही है, समथिंग इज रॉन्ग ओवर हियर, which triggers an increase in attention to identify the problem. So कभी कभी होता है ना that you are in an unhappy mood, उस वक्त कोई आपसे बड़े अच्छे से बात कर रहा है, somebody is talking very nicely to you, and suddenly आपके दिमाग में ट्रिगर होता है that ये why is this person being so nice to me, कुछ तो गड़बड़ है, इसको कुछ तो काम होगा मुझसे that this person is being so nice to me, है ना. सो दिस इज़ हाउ मूड अफेक्ट्स कि हैप्पी पीपल होंगे, हैप्पी मूड होगा तो पेरिफेरल रूट ले लेंगे. अनहैप्पी पीपल होंगे तो क्योंकि उनका नेगेटिव मूड है, सो दैट विल सिग्नल कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, समथिंग इज रॉन्ग, विच विल अल्टीमेटली ट्रिगर इंक्रीज इन अटेंशन, बिकॉज ऑफ विच दे विल टेक सेंट्रल रूट, और वो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन पे फोकस करेंगे. सो आई होप ये फर्स्ट टू फैक्टर्स यू ऑल आर वेरी मच क्लियर विद दिस, स्पीड ऑफ स्पीच एंड मूड. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्टर. So next factor is self-relevance. Now what do you mean by self-relevance? ठीक है, let us see. If the outcome of the argument or issue directly affects and has important implications for the self, then it is more likely that the perceiver will pay more attention and central route will be taken. अब इस चीज़ का मतलब क्या हुआ कि supposingly मेरा कोई किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो रहा है या फिर कोई इशू रेज हुआ क्लास में, ठीक है, तो उस आर्ग्यूमेंट का जो आउटकम होगा या उस इशू का जो आउटकम होगा, जो रिजल्ट होगा, अगर वो मुझे डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, मेरी लाइफ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा उस आर्ग्यूमेंट या फिर उस इशू का, तो फिर हाई चांसेस हैं कि मैं
उस आर्ग्यूमेंट में काफ़ी ज़्यादा अटेंशन पे करूँगी और मैं सेंट्रल रूट ऑफ प्रोसेसिंग लूँगी. दैट मीन्स आई विल पे अटेंशन टू एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, आई विल पे अटेंशन टू एवरी बिट ऑफ टॉकिंग दैट इज़ डन इन द आर्ग्यूमेंट और ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ द इशू, क्योंकि जो भी उस चीज़ का आउटकम होगा वो मुझे डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा. इसका एक रीसेंट एग्जाम्पल क्या हो सकता है, दैट वेनेवर हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, राइट, अगर हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं कॉलेज की या स्कूल की, सो अगर कोई बात होती है एग्ज़ाम से रिलेटेड कि इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कौन सी डेट को होगा, तो तब अचानक से सारे स्टूडेंट्स का अटेंशन जो है कम्प्लीटली डाइवर्ट हो जाता है टीचर के टूवर्ड्स, राइट. क्यों हो जाता है? बिकॉज उस डिस्कशन का जो एंड रिजल्ट होगा कि कौन सी डेट पे एग्ज़ाम होगा वो मेरे लिए रेलेवेंट है. क्यों रेलेवेंट है? बिकॉज आई ऑल्सो हैव टू गिव दैट एग्जाम, राइट. सो बिकॉज दैट थिंग इज रेलेवेंट टू मी, तो मैं हर एक इन्फॉर्मेशन पे अच्छे से अटेंशन पे करूँगी, एंड क्योंकि अटेंशन पे करूँगी दैट इज़ वाई आई विल टेक द सेंट्रल रूट. पर कोई ऐसा डिस्कशन हो रहा हो जो मेरे से रेलेवेंट ही नहीं है, या उसका जो भी आउटकम हो, वेदर पॉजिटिव आउटकम और नेगेटिव आउटकम, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. सो चांसेस हैं दैट आई विल टेक द पेरिफेरल रूट. मैं अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन पे फोकस करूँगी, अट्रैक्टिवनेस ऑफ द परसुएडर कि कौन ये मैसेज दे रहा है, कैसा दिख रहा है, वो उस पर फोकस करूँगी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई विल डिसाइड कि मुझे क्या एटीट्यूड रखना है. सो दिस इज़ द फैक्टर ऑफ सेल्फ रेलेवेंस. कोई इशू है, कोई आर्ग्यूमेंट है जो मेरे को डायरेक्टली अफेक्ट करने वाला है, आई विल पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू इट. लॉट ऑफ अटेंशन पे करूँगी तो सेंट्रल रूट लूँगी, राइट. नाउ वी मूव ऑन टू द फोर्थ फैक्टर. फोर्थ फैक्टर है ह्यूमर. अब ह्यूमर जो है इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. ठीक है, वॉट इज़ ह्यूमर? इट इज़ द क्वालिटी ऑफ बीइंग अम्यूजिंग और कॉमिक, राइट. सो सम पीपल हैव अ टेंडेंसी, कुछ क्वालिटी होती है लोगों में ऑफ बीइंग अम्यूजिंग या कॉमिक, है ना. सो रेलेवेंट ह्यूमर लीड्स टू सेंट्रल प्रोसेसिंग एंड इररेलेवेंट ह्यूमर लीड्स टू पेरिफेरल रूट. व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब बेसिकली ये होता है, रेलेवेंट ह्यूमर मतलब सम कॉमेडी, सम कॉमिक थिंग दैट इज रेलेवेंट टू यू, जो कि आपको समझ आ रहा हो. तो जो भी जोक या कॉमेडी आपको समझ आएगी उसमें यू विल टेक द सेंट्रल रूट. वाई विल यू टेक द सेंट्रल रूट? बिकॉज आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, सो यू विल पे अटेंशन टू एवरी बिट ऑफ दैट मैसेज, एवरी बिट ऑफ दैट जोक, है ना. पर कोई ऐसा जोक है जो कि आपके लिए रेलेवेंट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल कि कोई नई पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च की, ठीक है, उस नई पॉलिसी पे कोई मीम बना, बट आपको उस पॉलिसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है. यू डोंट हैव एनी क्लू दैट व्हाट दैट पॉलिसी इज़ अबाउट. आपको कुछ नहीं पता कि वो पॉलिसी किस बारे में है, क्या चीज़ें हैं उसमें. तो चांसेस है कि वो जो मीम है वो भी आपको समझ नहीं आएगा. नाउ बिकॉज यू विल नॉट अंडरस्टैंड दैट मीम, तो वो आपके लिए वो कॉमिक जो है वो इररेलेवेंट हो गया. वो कॉमिक इररेलेवेंट हो गया, इसीलिए आप उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करोगे एंड यू विल सिंपली टेक द पेरिफेरल रूट. ठीक है, आप आउटस्कर्ट से निकल जाओगे एंड यू विल नॉट फोकस ऑन इट मच. सो दिस इज़ वॉट बेसिकली ह्यूमर इज़, कि कोई ह्यूमर आपके लिए रेलेवेंट है, आपको समझ आ रहा है, तो फिर आप उस पर फोकस करोगे, देयरफॉर यू विल टेक द सेंट्रल रूट. बट इफ़ देयर इज सम कॉमिक, सम ह्यूमर दैट इज़ इररेलेवेंट टू यू बिकॉज आपको उस इशू के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, या फिर यू डू नॉट अंडरस्टैंड दैट जोक, सो यू विल टेक द पेरिफेरल रूट. अब ये चीज़ किसने बताई थी? देयर वर 3 पीपल, स्मिथ, हॉगवेट एंड पेटी, इन द ईयर ऑफ 1994. सो अब तक अगर आप मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं, सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड टिल नाउ दैट आई पे अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑन द पीपल हु हैव गिवन समथिंग एज वेल एज द ईयर. ठीक है, तो किन लोगों ने ये दिया है, कौन से ईयर में दिया है, प्लीज़ 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 रिमेंबर दैट. सो देयर वर 3 पीपल इन दिस, स्मिथ है, हॉगवेट है एंड पेटी है. कौन से ईयर में? 1994. So now we move on to the last factor that influences whether we take central route or peripheral route, and this factor is individual differences. अब ये जो factor है, this is a very very important factor, individual differences. ठीक है, so individual differences, what do you understand by individual differences? See, this basically means कि हम जो सारे individuals हैं we are very different from each other. मैं और मेरे friends, right? Likewise you and your friends, all of you would be very much different from each other. So सब में कुछ ना कुछ individual difference होते हैं. ठीक है, now whether I take the central route of processing
और आई टेक द पेरिफेरल रूट ऑफ प्रोसेसिंग, वो डिटरमाइन होगा, वो अफेक्ट होगा मेरे इंडिविजुअल पर्सनालिटी के बेसिस पे. So how will it get affected? On the basis of need for cognition and on the basis of differences in self-monitoring. Let us first talk about the need for cognition. तो need for cognition में क्या है? The degree to which someone is oriented to engaging in effortful thought. Right? Degree to which someone is oriented to engaging in effortful thought. Now what does this mean? This means कि कई लोगों का एक innate tendency होता है, कई लोगों को हमेशा ये रहता है that I want all the information about an issue. कि अगर मैं कोई basically example can be if a child is studying some theory, हो सकता है कि वो एक ऐसा इंसान हो जो थ्योरी पढ़ रहा हो और उसको काफ़ी ज़्यादा टेंडेंसी हो दैट इफ़ आई एम स्टडिंग अबाउट समथिंग तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए उस चीज़ के बारे में कि वो थ्योरी किसने दी थी, कौन से ईयर में दी थी, कैसे आई, क्या एक्सपेरिमेंट्स किए थे, क्या रिजल्ट आया, कैसे अप्लाई कर सकते हैं. सो देर आर सम पीपल who want every bit of information. ठीक है, तो उनमें need for cognition जो है वो हाई होता है. They want to engage in a lot of thinking processes. But on the other hand कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें अगर वो थ्योरी पढ़ रहे हैं so they would just be specific to कि भाई simple बता दो who gave it, कौन से ईयर में और वो क्या बताती है. राइट, सो दीज आर द टू बंच ऑफ पीपल. दोनों में काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं. एक को सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, एक जस्ट वांट्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दैट थ्योरी. राइट, सो द पीपल who are higher in need for cognition, मतलब जिन्हें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेसेस में इन्वॉल्व हैं, they are more likely to take central route of processing. But the people who are lower in need for cognition, जिन्हें ज़्यादा इंफॉर्मेशन से मतलब नहीं है, they just want the relevant information, they will be taking the peripheral route of processing. ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस कि कुछ लोगों को नेचुरली एक टेंडेंसी होता है कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और कुछ लोगों को नहीं होता. नाउ द सेकेंड बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज डिफरेंसेस इन सेल्फ मॉनिटरिंग. नाउ व्हाट डज दिस मीन? Degree to which someone is concerned with what other people think of them. Right, so we again have two sets of people. एक set of people होते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं. Right, they are getting affected a lot by what other people are thinking about them. But at the same time दूसरे set के ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता what others are thinking about them. They keep on doing things that they feel like and they do not get affected by others' opinions. Right, so people who are high in self-monitoring will take the central route. Right, so people high in self-monitoring मतलब the people who are engaging in this fact that what other people will think of them, they will be tended to take the central route, while people who are lower in it, people who are lower in self-monitoring will take the peripheral route. So those people who focus a lot on themselves instead of focusing on other people's opinion, they will actually take the central route क्योंकि वो हर एक इन्फॉर्मेशन पे अच्छे से फोकस करेंगे, अच्छे से देखेंगे कि वो इन्फॉर्मेशन क्या है, मेरे लिए रेलेवेंट है कि नहीं, मेरे लिए हेल्पफुल है कि नहीं. तो पीपल हाई इन सेल्फ मॉनिटरिंग विल इवेंचुअली टेक सेंट्रल रूट क्योंकि वो अपने आप से रिलेटेड है. बट पीपल हु आर लो इन सेल्फ मॉनिटरिंग, जिन्हें बहुत फ़र्क पड़ रहा है दैट व्हाट अदर पीपल आर थिंकिंग अबाउट देम, तो दे विल सिंपली टेक द पेरिफेरल रूट क्योंकि देन दे विल नॉट फोकस ऑन अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. वो किस चीज़ पे फोकस करेंगे कि अगर मैं ये चीज़ करूँगी या करूँगा तो व्हाट अदर्स विल थिंक ऑफ देम. इफ़ आई विल से येस टू दिस देन व्हाट अदर्स विल थिंक ऑफ मी. ठीक है, सो दिस इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस कि नीड फॉर कॉग्निशन के बेसिस पे और डिफरेंसेस इन सेल्फ मॉनिटरिंग के बेसिस पे देर आर टू सेट्स ऑफ पीपल हु आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. और वो डिफरेंस भी डिटरमाइन करता है दैट वेदर समबडी टेक्स द सेंट्रल रूट ऑफ प्रोसेसिंग और द पेरिफेरल रूट ऑफ प्रोसेसिंग. सो आई होप दैट आप सबको फैक्टर्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे. जस्ट अ क्विक रिकैप, व्हाट वर द 5 फैक्टर्स. फर्स्ट वाला था स्पीड ऑफ स्पीच, second one was mood, the third one was self-relevance, fourth one was humor, and the fifth and the last one is your individual differences. So let us now move forward. Now
दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक विद इन परसुएशन जो कि है पेरिफेरल क्यूज. ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, वंस अ रूट इज टेकन इट मे प्रूव टू बी परसुएसिव और नॉट डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंटेक्स्ट. इसका क्या मतलब हुआ कि देखो अभी तो हमने देख लिया कि दो रूट हो सकते हैं, एक हो सकता है आपका सेंट्रल रूट और एक हो सकता है पेरिफेरल रूट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे कि मैं सेंट्रल रूट लेगा कोई इंसान या फिर पेरिफेरल रूट लेगा कोई इंसान. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि अगर मैंने एक रूट ले भी लिया, वेदर सेंट्रल रूट या फिर पेरिफेरल रूट, सपोजिंगली आई हैव टेकन वन रूट, पर वो रूट परसुएसिव होगा कि नहीं होगा. परसुएसिव मतलब जो भी मैंने रूट लिया वेदर इट विल लीड टू एन एटीट्यूड चेंज और नॉट, कि क्या वो रूट मेरा एटीट्यूड चेंज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंटेक्स्ट. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटेक्स्ट मतलब जो मैसेज है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी डिपेंड करेगा. So this is where we are going to talk about peripheral cues, that once a route is taken, whether that route is persuasive or not, that means whether that route is able to change my attitude or not will depend upon the message content. So supposingly मैंने लिया central route, ठीक है, so supposingly I have taken the central route of information processing. तो central route में क्या important है, if it is taken then key determinant of persuasion यहाँ पे basically attitude change ही है. key determinant of attitude change will be the argument quality. so central route की जो, क्योंकि हमने already बात कर रखी है, so you all must be aware कि central route मतलब I will be focusing on इंफॉर्मेशन, एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन पे मैं फोकस करूँगी, राइट. तो अगर मैंने सेंट्रल रूट लिया है, सो मेरा एटीट्यूड चेंज होता है या नहीं होता है विल बेसिकली डिपेंड अपॉन कि आर्ग्यूमेंट की क्वालिटी क्या है, या फिर जो मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उसकी क्या क्वालिटी है, वेदर दैट इंफॉर्मेशन इज कन्विंसिंग, क्या वो इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है मुझे कन्विंस करने के लिए या फिर इनसफिशिएंट है मुझे कन्विंस करने के लिए. सो सेंट्रल रूट लेने पे द की डिटर्मिनेंट ऑफ एटीट्यूड चेंजेस आर्ग्यूमेंट क्वालिटी, कि कैसा आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया गया है. ठीक है, मेरा एटीट्यूड चेंज करने के लिए क्या इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड की गई है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई विल चेंज माई एटीट्यूड और नॉट चेंज माई एटीट्यूड, राइट. बट इफ आई टेक द पेरिफेरल रूट ऑफ प्रोसेसिंग, अभी तो हमने बात की कि मैंने सेंट्रल रूट लिया होता तो फिर क्या पेरिफेरल क्यूज होते, बट ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर मैंने पेरिफेरल रूट ले लिया तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे मैसेज सोर्स के दैट विल डिटरमाइन परसुएशन, दैट विल डिटरमाइन माई एटीट्यूड चेंज. सो इसमें पेरिफेरल रूट लेने में मेरे इन टोटल 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैसेज सोर्स के जो डिटरमाइन करेंगे परसुएशन. नाउ आपने नोटिस किया आई हैव रिटन द मैसेज सोर्स. मैसेज क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे है पेरिफेरल रूट. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस फैक्ट कि जो इंसान पेरिफेरल रूट ले लेता है वो मैसेज पे तो फोकस ही नहीं करता, डज नॉट फोकस ऑन द मैसेज कंटेंट. किस पे फोकस करता है, मैसेज के सोर्स पे, कि वो मैसेज कौन दे रहा है, हु इज़ टेलिंग मी दैट थिंग. तो वो उस हु पे फोकस करता है, उस सोर्स पे फोकस करता है इंस्टेड ऑफ एक्चुअली फोकसिंग ऑन द मैसेज कंटेंट. सो देर आर बेसिकली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स उस मैसेज सोर्स के जो डिटरमाइन करेंगे कि मेरा एटीट्यूड चेंज होता है या नहीं होता अगर मैंने पेरिफेरल रूट लिया है तो. सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज फिजिकल अट्रैक्टिवनेस. सो ये चीज़ हमने डिस्कस की थी बिल्कुल स्टार्टिंग में वीडियो के. फिजिकल अट्रैक्टिवनेस इज attitude change more likely to happen if the source has physical attractiveness. source मतलब जो इंसान मुझे मैसेज बता रहा है या मैसेज दे रहा है या दे रही है, इफ़ दैट पर्सन इज़ फिजिकली अट्रैक्टिव तो फिर ज़्यादा चांसेस है कि मैं अपना एटीट्यूड चेंज कर लूँगी. नाउ इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था, ठीक है. इस चीज़ को प्रूव करने के लिए देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट दैट वाज डन. दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय दिस पर्सन कॉल्ड चाइकन इन द ईयर ऑफ 1979. अगेन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द फैक्ट, प्लीज़ रिमेंबर किसने किया था और कौन से ईयर में किया था. चाइकन ने किया था 1979 में. नाउ एक्सपेरिमेंट क्या था कि कुछ एक्सपेरिमेंटर्स थे, दे वर ट्राइंग टू परसुएड यूजी स्टूडेंट्स. यूजी स्टूडेंट्स मतलब अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स. सो बेसिकली जस्ट लिसन टू मी, ठीक है. अभी डोंट रीड एनीथिंग, जस्ट लिसन टू मी.
सो एक्सपेरिमेंटर्स थे वो जो है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को परसुएट करने की कोशिश कर रहे थे एक पेटिशन साइन करने के लिए. अब वो पेटिशन किस बारे में था? पेटिशन वॉज रिगार्डिंग कि यूनिवर्सिटी शुड स्टॉप सर्विंग मीट. ठीक है, तो वो पेटिशन था कि सारे स्टूडेंट्स को साइन करना है उस पेटिशन पे, और ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो वो यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा, सो दैट यूनिवर्सिटी शुड स्टॉप सर्विंग मीट. यूनिवर्सिटी जो है वो मीट सर्व ना करे, उसके लिए एक पेटिशन था. तो कुछ एक्सपेरिमेंटर्स गए, वो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स के पास गए, उनको सब कुछ बताया दैट वी शुड नॉट बी ईटिंग मीट, और यूनिवर्सिटी को हमें परसुएट करना है कि वो मीट सर्व करना छोड़ दे, सो यू हैव टू साइन दिस पेटिशन. तो रिजल्ट्स क्या थे? चाइकन ने जो रिजल्ट्स देखे वो ये थे कि इन दोज केसेस जहाँ पे एक्सपेरिमेंटर जो है द एक्सपेरिमेंटर वाज फिजिकली अट्रैक्टिव, राइट, उस केसेस में मोस्ट ऑफ द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स साइंड द पेटिशन. ठीक है, विदाउट इवन आस्किंग कि ऐसा क्यों चाहते हो आप लोग कि यूनिवर्सिटी मीट सर्व करना छोड़ दे, और व्हाई शुड वी एक्चुअली साइन, व्हाई शुड वी अग्री टू यू. इंस्टेड ऑफ आस्किंग, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द सेंट्रल रूट, उन्होंने सिंपली क्या देखा कि द पर्सन इज फिजिकली अट्रैक्टिव एंड दे सेड ओके वी विल साइन. ठीक है, तो उन्होंने ईजीली अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया. बट इन द ऑपोजिट केसेस ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर एक्सपेरिमेंट्स फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं थे सो उनका एटीट्यूड चेंज, यूजी स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ. सो दिस बिकम्स योर वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैसेज सोर्स, कि जो इंसान मैसेज दे रहा है, द सोर्स, इफ दैट पर्सन इज फिजिकली अट्रैक्टिव, देन एटीट्यूड change is more likely to happen than if the person is not physically attractive, right? Now the second characteristic of message source is similarity to self. अब ये भी एक important कैरेक्टरिस्टिक है. सिमिलैरिटी टू सेल्फ में क्या होता है? सिमिलैरिटी इन टर्म्स ऑफ शेयर्ड एटीट्यूड, अपीयरेंसेस और सोशल कैटेगरीज कैन ऑल इन्हांस द परसुएसिवनेस ऑफ द मैसेज. तो अगर कोई इंसान है जो हमें एटीट्यूड चेंज करने के लिए परसुएट कर रहा है, एंड इफ वी परसीव दैट पर्सन टू बी वेरी सिमिलर टू आवरसेल्फ, हम देखते हैं कि अरे इस पर्सन का तो काफ़ी सिमिलर एटीट्यूड है, या फिर काफ़ी सिमिलर अपीयरेंस है, या फिर किसी सेम सोशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं दैट आई विल इंडल्ज इन एटीट्यूड चेंज. अब इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल हम किसी फॉरेन कंट्री में गए, राइट, फॉर एग्जाम्पल वी वेंट टू अमेरिका. ठीक है, हम लोग अमेरिका में गए, सो वी आर इंडियंस. अमेरिका में जाके हमें कोई इंडियन ही मिल जाता है जो कि हमें परसुएट करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं ये इवेंट काफ़ी अच्छा है, दिस इवेंट इज़ वेरी नाइस. तो हम क्या देखते हैं कि वी बिलोंग टू द सेम सोशल कैटेगरी, यार ये भी इंडियन है तो सही बोल रहा होगा, क्योंकि इंडियंस के ज़्यादातर जो टेस्ट हैं वो सेम ही होते हैं. सो मोस्ट लाइकली वी विल अग्री कि हाँ यार ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, लेट मी ऑल्सो चेंज माई एटीट्यूड एंड चेंज इट टू कि हाँ ये इवेंट अच्छा है. सो दैट इज़ वॉट सिमिलैरिटी टू सेल्फ इज़, कि अगर हम किसी इंसान को देखते हैं कि उसका एटीट्यूड भी हमारे जैसा ही है किसी टॉपिक को रिलेटेड, या फिर दैट पर्सन इज़ वेरी सिमिलर अपीयरिंग टू मी, मतलब मेरे जैसा ही काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, या फिर इफ़ वी बिलोंग टू द सेम सोशल कैटेगरी, all of these things, all of these similarities, they can actually enhance the persuasiveness of message. They can actually motivate us to change our attitude. ठीक है, so this becomes your second characteristic. Now the third and the last characteristic of message source, वो है source of credibility. ठीक है, so source of credibility में क्या होता है? A source क्या है? The person who tells us the message, है ना? A source is seen as credible if they are seen to be an expert, unbiased and trustworthy. तो हम किसी भी सोर्स को credible perceive करेंगे only when हम उस इंसान को सोचते हैं कि वो उस चीज़ में एक्सपर्ट है, या फिर उसका अनबायस्ड ओपिनियन है, या फिर वो ट्रस्टवर्दी है. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल समबडी कम्स एंड टेल्स मी कि ये चीज़ तो काफ़ी अच्छी है, ये प्रोडक्ट इज़ वेरी नाइस, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस. ठीक है, एंड इफ़ वी ऑलरेडी नो कि ये जो इंसान है वो उस चीज़ में एक्सपर्ट है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ सम फैमिली डेंटिस्ट.
फैमिली डेंटिस्ट टेल्स मी कि ये जो पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट है, यू शुड यूज़ ओनली दिस टूथपेस्ट बिकॉज ये काफ़ी बेनिफिशियल है हमारे डेंटल हाइजीन के लिए। तो अब जो सोर्स है जो मुझे मैसेज दे रहा है, आई हैव परसीव्ड दैट सोर्स टू बी एन एक्सपर्ट। क्यों? दैट बिकॉज दैट पर्सन इज एक्सपर्ट इन दैट फील्ड ऑफ डेंटल हाइजीन, बिकॉज द पर्सन इज द डेंटिस्ट। सो बिकॉज आई हैव सीन कि ये इंसान एक्सपर्ट है, सो जो भी कह रहा होगा सही ही कह रहा होगा, देयरफॉर आई विल चेंज माई एटीट्यूड एंड आई विल प्रोबेबली अग्री कि ठीक है, आई विल स्टार्ट यूजिंग दिस टूथपेस्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, राइट। सो अ सोर्स विल बी सीन एज क्रेडिबल अगर हम उसे देखते हैं एज एक्सपर्ट या फिर एज अनबायस्ड या फिर एज ट्रस्टवर्दी, एंड ज़्यादातर चांसेस हैं दैट वील अग्री टू चेंज आवर एटीट्यूड। अब ये कैसे एक्सप्लेन हो सकता है? इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ एन इफेक्ट विच इज़ कॉल्ड स्लीपर इफेक्ट। सो व्हाट इज स्लीपर इफेक्ट? Differences in persuasion caused by differences in credibility tend to diminish over time. अब ये इफेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ इज़ इट इम्पॉर्टेंट? कि जो हमारे परसुएशन में डिफरेंसेस होते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन क्रेडिबिलिटी, दैट मीन्स अगर मैंने किसी इंसान को एज एक्सपर्ट देखा या फिर एज अनबायस्ड देखा या फिर एज ट्रस्टवर्दी देखा और उसकी वजह से मैंने अपना एटीट्यूड चेंज किया, तो ये जो मेरा फाइनल एटीट्यूड बना दैट में डिमिनिश ओवर टाइम। चांसेस हैं कि मेरा फाइनल एटीट्यूड जो है टाइम के साथ ख़त्म हो जाए, टाइम के साथ मैं उस चीज़ को भूल जाऊँ। दिस इज़ द स्लीपर इफेक्ट। स्लीप होता है व्हेन वी स्लीप वी फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। तो सिमिलरली जो भी मेरा एटीट्यूड चेंज हुआ बिकॉज ऑफ सोर्स क्रेडिबिलिटी, वो विद टाइम ख़त्म हो सकता है। अब स्लीपर इफेक्ट की क्या एक्सप्लेनेशन है? क्यों विद टाइम दैट एटीट्यूड विल चेंज? दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ सोर्स मेमोरी। सोर्स मेमोरी क्या होता है कि हु टोल्ड मी द मैसेज इज द सोर्स, राइट। हमने पहले डिस्कस किया था कि सोर्स क्या होता है, कि कौन मुझे मैसेज बता रहा है, एंड सोर्स मेमोरी बिकम्स कि हु टोल्ड मी द मैसेज वेदर इट रिमेन्स इन माई माइंड और नॉट। सो ओवर टाइम सोर्स मेमोरी decays. So many influences of source credibility, whether they were good or they were bad, they get diminished. मतलब कि टाइम बीतने के साथ साथ मेरा जो सोर्स मेमोरी है वो डीके हो जाएगा। जस्ट नाउ आई गेव एन एग्जाम्पल ऑफ द डेंटिस्ट एंड द टूथपेस्ट, राइट। सो विद टाइम क्या होगा, देर आर हाई चांसेस कि स्लीपर इफेक्ट विल कम इन टू प्ले, और स्लीपर इफेक्ट कम इन टू प्ले होगा तो विद टाइम हो सकता है मैं भूल जाऊँ कि it was the dentist who told me, who recommended me to use this particular brand of toothpaste. So मेरा source memory जो था कि dentist ने मुझे बताया था, that got decayed. तो इसीलिए मेरे एटीट्यूड में जो भी इन्फ्लुएंस हुआ, इन दैट केस तो मेरे एटीट्यूड में गुड इन्फ्लुएंस हुआ था, दैट आई अग्रीड टू यूज़ दैट टूथपेस्ट। मैं उस एटीट्यूड के इन्फ्लुएंस को आई विल फॉरगेट, एंड दैट इज़ वाई आई विल एक्चुअली रिटर्न बैक टू माई ओरिजिनल एटीट्यूड, और मैं वापस से मे बी वही टूथपेस्ट यूज़ करने लग जाऊंगी जो मैं पहले करती थी। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली सोर्स ऑफ क्रेडिबिलिटीज़ की इसके एक डिसएडवांटेज भी है, वो जो कि है स्लीपर इफेक्ट। द डिफरेंसेस इन परसुएशन या एटीट्यूड चेंज दैट इज कॉज्ड बाय क्रेडिबिलिटी, वो टाइम के साथ डिमिनिश हो जाता है। क्यों डिमिनिश हो जाता है? क्योंकि जो सोर्स मेमोरी है वो विद टाइम डीके हो जाती है, विद टाइम वो ख़त्म हो जाती है, एंड देयरफॉर वी टेंड टू फॉरगेट कि जो सोर्स था वो क्रेडिबल था कि नहीं था, जो भी मेरे एटीट्यूड में चेंज हुआ था वो गुड था या बैड था, राइट। सो दीज वर बेसिकली द three factors that influence our peripheral root: physical attractiveness, similarity to self, and source of credibility. After that, we have a very important theory that is known as the conversion theory. ठीक है, this conversion theory was basically given by Moscovici. Please remember the name. Who gave the conversion theory? It was given by Moscovici in the year of 1980. तो 1980 में Moscovici ने conversion theory दी थी. What does it state? Just look at the second bullet point. So it states that when an argument is made by the majority, people focus on their relation with the source of message rather than content of message, because they feel social pressure to conform to majority's viewpoint. This leads to peripheral processing. इसका मतलब बेसिकली आपके लिए ये होता है कि अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट है जो एक मेजॉरिटी मेक करे, मतलब काफ़ी सारे लोग हैं जो सेम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं,
ठीक है, मैं हूँ सपोजिंगली, और कम से कम 15-20 लोग मुझे परसुएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर जो म्यूज़िक कंपोज़र है वो बहुत अच्छा म्यूज़िक कंपोज करता है। सो चांसेस है कि क्योंकि इतने सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि वो म्यूज़िक कंपोज़र बहुत अच्छा म्यूज़िक कंपोज करता है, सो व्हाट आई विल डू इज़, मेरे को एक सोशल प्रेशर फील होगा। आई विल फील द सोशल प्रेशर दैट यार इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो कुछ तो होगा, आई मे बी रॉन्ग, मैं ही गलत होंगी, ये सारे लोग सही होंगे, बिकॉज सो मैनी पीपल आर सेइंग दिस थिंग। सो देयरफॉर मेरे को एक सोशल प्रेशर फील होगा टू कन्फर्म कि मैं मेजॉरिटी के व्यू पॉइंट के साथ कंफर्म कर दूंगी, एंड आई विल ऑल्सो एंड अप सेइंग कि येस वो म्यूज़िक कंपोज़र बहुत अच्छा म्यूज़िक कंपोज करता है। सो बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कन्फर्म्ड टू द मेजॉरिटीज व्यू पॉइंट, सो दैट विल लीड टू पेरिफेरल प्रोसेसिंग। पेरिफेरल प्रोसेसिंग क्यों हुई, प्लीज़ थोड़ा सा सोचो। राइट, सो पेरिफेरल प्रोसेसिंग इसीलिए हुई बिकॉज मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पे फोकस तो किया ही नहीं, आई जस्ट फोकस ऑन द नंबर ऑफ पीपल गिविंग मी द मैसेज। मैंने सोर्स पे फोकस किया कि बहुत सारे लोग थे, तो इसीलिए मैं मान गई और मैंने अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया। सो देयरफॉर पेरिफेरल प्रोसेसिंग हुई। बट एट द सेम टाइम व्हेन एन आर्ग्यूमेंट इज मेड बाय द माइनॉरिटी, बहुत कम लोग अगर कोई आर्ग्यूमेंट कह रहे हैं, देन पीपल आर मोर लाइकली टू फोकस ऑन मैसेज कंटेंट टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाई द माइनॉरिटी इज टेकिंग द डाइवर्जेंट स्टैंड पॉइंट। ठीक है, सो एक जगह मुझे कम से कम 15-20 लोग कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, बट एट द सेम टाइम अगर सिर्फ 2 लोग हैं, राइट, दे विल बिकम अ माइनॉरिटी, आइदर 1 और 2 पीपल हैं जो मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं दैट दिस पर्टिकुलर म्यूज़िक कंपोज़र का सॉन्ग बहुत अच्छा है। तो अब मैं मेरा पूरा फोकस जाएगा मैसेज के कंटेंट पे, और मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगने लग जाऊंगी। मैं माइनॉरिटी के साथ मैसेज कंटेंट पे फोकस करूंगी। आई विल आस्क फॉर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो कंपोज़र अच्छा म्यूज़िक कंपोज करता है, वाई डू यू थिंक सो, आप इस कंक्लूजन पे कैसे पहुँचे, all of those things. So क्योंकि ऐसा मैं क्यों करूँगी, because I want to understand कि जो इतनी minority है, why is this minority taking some standpoint which is opposite to mine. ठीक है, वो diverge क्यों कर रही है मेरे standpoint से. So this will lead me to engage in central processing, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा information पे focus करूँगी और message content पे. So all in all conversion theory किस बारे में है? फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय मॉस्कोविसी 1980 में, मेजॉरिटी अगर कोई मैसेज दे रही है मुझे तो आई विल कन्फर्म टू दैट बिकॉज ऑफ द सोशल प्रेशर, और मैं पेरिफेरल प्रोसेसिंग ले लूँगी। माइनॉरिटी अगर कोई मैसेज दे रही है तो मैं मैसेज के कंटेंट पे फोकस करूँगी, ना कि सोर्स पे, और मैसेज के कंटेंट पे फोकस करूँगी तो इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पे फोकस करूँगी, एंड आई विल एंड अप चूजिंग द सेंट्रल प्रोसेसिंग, राइट। सो आई होप दैट कन्वर्जन थ्योरी is clear to all of you. So thank you so much for watching the video so patiently and understanding everything. I hope that you liked the video. If so, please click on the thumbs up button. It really motivates me to create more of these videos. Share it with your friends who might require the videos on psychology, and do subscribe my channel guys if you have watched the video till here and want more of such videos. So with this, we complete the chapter Attitude, and the link for all the videos that have been created on the Attitude chapter, I will be leaving these links in the description box below. Do check them out and comment in the comment section below regarding any doubt that you have or any topic that you want clarification for. So thank you for watching the video. Have a good day and bye-bye.